Hello friends, how are you? Friends, today I am going to translate some new lines of the song. अब की छोड़ के जीव हमरा के बहरवाए बलम जी, हमरा के पेठादा नहीं हरवाए बलम जी. And friends, you know that the only purpose of translating the song is to make you able to get difficult to difficult sentences in translation. Because friend, if your translation power is very deep, then you can speak fluent English, English with full confidence, and English for a long time. And only then, friend, you can prepare deep grammar. Because friend, if your grammar power is not deep, then you can't get selection in SSC, Bank, Railway, NDA, Army, Navy, or any competitive level examination. And because friend, in competitive level examination, you have to face difficult paper of English, and their deep knowledge of grammar is required. And friend, translation, deep translation, give you chance to prepare deep grammar. Without power of translation, friend, you have to cram the rules of grammar. And if you cram, then friend, you can't beat any competition. You can't clear your English paper. And also, friend, in board examination and home examination, power of translation provide enough energy. Yes, friend, I know that in some papers, in direct translation is not asked, but its knowledge is very useful to clear the paper of English. And friend, in our country, our constitution gives equal right to all languages. But friends, you know very well that some person hate Bhojpuri. Why they hate? I don't know. They must not do this because it is also one language. It is very sweet language, friend. If you know Bhojpuri, then you must speak Bhojpuri at every place. You know all languages, but you don't hate any language. We must respect to our all Indian languages. Because friend, if we forget our values, then what will we be? We will be photocopy of the English person only. Friend, you know that China and India both became free nearly same time. But now what is the position of China? It is a developed country, and we are still developing country because Chinese have protected their values. They have not forgotten their values, but we have forgotten our values. Everything we have forgotten. And friend, you know that in our country there are so many schools where if children speak Hindi, then the principal, the teacher punish the children, punish the student. Why do they punish? On speaking Hindi? And at what basis they celebrate national festivals? One side they punish the student if he speaks Bhojpuri, if he speaks Hindi, and one side they celebrate national festivals. Friends, we are citizens of a free country, but our national language Hindi, if you speak, if our children speak in schools, then they get punishment. It is not fair, friend. And imagine if they speak Bhojpuri there, then what will be happen with them? Friend, we have to protect our values. मित्रों, आज के गाने में, आज के वीडियो में मैं आपकी छोड़ के जीवा हमारा के बहरवाए बलम जी, हमरा के पेठा द नहीं हरवाए बलम जी, इस गाने की आगे की कुछ लाइनों को जो है ट्रांसलेट करेंगे। और दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि गानों को ट्रांसलेट करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको कठिन से कठिन वाक्यों का सेंस कैसे लेना है, कैसे उनके सेंस को लेकर के हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना दिक्कत के। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कठिन से कठिन वाक्यों को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपके अंदर किसी भी गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, और तभी तो आप अपने ग्रामर को जो है तैयार कर सकते हैं अच्छी तरह से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हो, चाहे वो बोर्ड या होम एग्जाम के लिए हो। और दोस्तों, हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन हमारे मूल्य कहाँ स्वतंत्र हैं दोस्तों? हमारे अपने देश की भाषाएं दोयम दर्जे की समझी जाती हैं। हमारे अपने देश में, हमारे इस पूर्वांचल में, हमारे यूपी बिहार में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे अगर हिंदी बोल दें तो वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर उसको मुर्गा बनाते हैं, उस पर फाइन लगता है, फाइन जमा करना पड़ता है। मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं तो स्पीकिंग सिखाता हूँ। 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर मैं स्पीकिंग सिखाता हूँ और गारंटी के साथ सिखाता हूँ। लेकिन तब मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है जब कोई गार्जियन आता है अपने बच्चे को लेकर, कहता है कि सर इसको इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए, ये रोज स्कूल में मुर्गा बनता है।
महीने में फाइन जमा करना पड़ता है, क्योंकि ये क्लास में हिंदी बोलता है, स्कूल में हिंदी बोलता है। दोस्तों, हम अपने देश में, हम अपने पूर्वांचल में, हम अपने यूपी बिहार में अगर स्कूल में हिंदी बोलते हैं, हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, तो ये कौन सा गुनाह करते हैं? हम आज़ाद किस बात के हैं? हमें हिंदी बोलने पर सजा मिलती है, हमारे बच्चों को स्कूल में दंडित होना पड़ता है, उनको मुर्गा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मुर्गा? हमारे बच्चे ने कौन सा अपराध कर दिया अगर हिंदी बोला तो? और क्यों ना हिंदी बोले? हम आज़ाद देश के रहने वाले हैं, हमें अपने ही देश में हिंदी को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। और वो बच्चे अगर भोजपुरी बोल दिए तब क्या होगा उनके साथ? तब वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर क्या करेंगे उसके साथ? अगर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो सिर्फ उस बच्चे की जिम्मेदारी है क्या? आपके स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजा जाए, आपने उसको इंग्लिश क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया उसको इंग्लिश बोलना? अगर वो बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। बच्चा आपके यहाँ पढ़ने जाता है, आप उसको इंग्लिश बोलना सिखाइए, और नहीं बोलता है, अगर हिंदी बोलता है तो आप उसको सजा क्यों दे रहे हैं? मैं भी तो बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, पर मैं तो कभी किसी बच्चे को मना नहीं करता कि तुम हिंदी ना बोलो। जब बच्चे के दिमाग में इंग्लिश का ज्ञान भर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्लास के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। और उसको हिंदी बोलने के लिए अगर वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल मना करते हैं तो किस बात पे 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं? एक तरफ वो राष्ट्रभाषा का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय पर्वों को मना रहे हैं। ये दो तरह का व्यवहार कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और जो बच्चा हिंदी बोलने की वजह से स्कूल में दंडित हुआ है, कल को डीएम एसडीएम बनेगा तो वो किस आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों की जो हिफाजत करेगा? दोस्तों, बहुत सी बातें हैं जो आप जानते होंगे और आपको जानना भी चाहिए। और दोस्तों, इस गाने में आप जानते हैं अच्छी तरह से एक शादीशुदा औरत के दयनीय स्थिति का जो है जिक्र किया गया, बखान किया गया है, उसमें उसका वर्णन है कि शादीशुदा हो जाने के बाद औरतों के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी होती है, क्या क्या जुल्म ससुराल में ढाए जाते हैं। इस गाने के द्वारा दोस्तों आपको ये बातें जो है देखने सुनने को मिल रही हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं तो शहर में रहता हूँ लेकिन मेरा जुड़ाव गांव से भी है, मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। गांव में भी घर है, शहर में भी घर मैंने बनवाया हुआ है। दोस्तों, मेरे गांव में बहुत सी ऐसी शादीशुदा लड़कियां हैं जिनको सिर्फ इसलिए ससुराल से भगा दिया गया है कि उनको सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। 3-4 बेटियां पैदा हुई, बेटा पैदा नहीं हुआ, उनको ससुराल वाले भगा दिए। वो बेचारी अपने मायके रहती हैं। सोचिए कितना कष्ट होता है। वजह क्या है? कि बेटी पैदा हो रही है। दोस्तों, आप विज्ञान के सिद्धांत को जानते होंगे, विज्ञान में, बायोलॉजी में एक पॉइंट है, नहीं जानते हैं डॉक्टर से क्लियर कर लीजिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि महिलाओं के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष के अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। महिला का एक्स और पुरुष का एक्स क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है। महिला का एक्स और पुरुष का वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो बेटा पैदा होता है। पुत्र पैदा करने की जो जिम्मेदारी जिस क्रोमोसोम की होती है वो तो केवल मर्द के अंदर होती है, पुरुष के अंदर होती है। महिलाओं के अंदर तो सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो फिर अगर बेटियां सिर्फ पैदा हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो उस पुरुष की है। फिर भी उस महिला को भगा दिया जाता है और उसके पति की दूसरी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हमारे समाज में होती आई है, हो रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमरा के पेठा दनई अरे बलंगी, हमरा के पेठा दनई अरे बलंगी। दोस्तों, लाइन है, कौनो बहनवा करब रहब नहीं घरवा बलम जी, हमरा के पेठा द नहीं हरवा बलम जी। कौनो बहनवा करब रहब नहीं घरवा बलम जी। कौनो बहनवा करब रहब नहीं घरवा बलम जी means, oh my husband, you can make any pretense, but I will not stay at this home alone without you now. Friend, the line is, कौनो बहनवा करब रहब नहीं घरवा बलम जी। कौनो means any, बहनवा pretense, करब you will make, रहब नहीं घरवा means I will not stay at home without you, a balamji, oh my husband. Friend, the line is, oh my husband,
You can make any pretense, but now I will not stay at home. I will not live in this home alone without you. Now, friend, the rule is कौनो बहनवा करब. कौनो means कोई भी, any. बहनवा means बहाना, pretense. करब means आप करेंगे. रहब नाही, मैं नहीं रहूंगी. घरवा यानी घर. ए बलमजी मीन्स आई मेरे पतिदेव. फ्रेंड, द लाइन इज कौनो बहनवा करब रहब नहीं घरवा ए बलमजी मीन्स, दोस्तों वह महिला कह रही है अपने पति से कि सुन लीजिए, आप कोई भी बहाना कर लीजिए, लेकिन इस बार मैं आपको अकेले जो है नौकरी पर जाने नहीं दूंगी. या तो मुझको मेरे मायके छोड़ आइए, या तो मुझको अपने साथ नौकरी पर लेकर के चलिए, लेकिन अकेले तो आप इस बार जो है नौकरी पर नहीं जाएंगे. इतना तो सोच लीजिए. मीन्स आप कोई भी बहाना कर सकते हैं. ये कैन कुड का प्रयोग है. फ्यूचर हो तो विल बी एबल टू लगाते हैं. रहब नहीं घरवा यानी मैं घर अकेले नहीं रहूंगी. अंत में क्या आ रहा है, गागेगी आ रहा है. ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया जिसमें विल या शैल का प्रयोग होता है. तो दोस्तों लाइन है आप कोई भी बहाना कर सकते हैं. मीन्स यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ प्रिटेंस. रहब नहीं घरवा, मैं घर रहूंगी नहीं, अकेले नहीं रहूंगी. अब अकेले इस घर में मैं नहीं रहूंगी. या तो आप यहाँ रहिए, परमानेंट रहिए, तब तो मैं इस घर में रहूंगी. या तो मुझे अपने साथ नौकरी पर के लिए चलिए, या तो मुझे मेरे मायका छोड़ाइए. यही 3 विकल्प है और कोई चौथा ऑप्शन है नहीं. तो दोस्तों आप इस लाइन को और भी तरह से बना सकते हैं. कौनो बहनवा करब यानी कि आप कोई भी बहाना कर लीजिए, यानी आप कोई भी बहाना करो. ओ देखिए दोस्तों, ये ओ वाला वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस, जो डे 1 के वीडियो में आपको बताया गया है. मीन्स आप इसको और भी तरह बिना कैन कुड के भी बना सकते हैं. यू मेक एनी प्रिटेंस, ये इंपेरेटिव आंसर है. यू मेक एनी टाइप ऑफ प्रिटेंस. और दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बनेगा कि मैं घर में अकेले नहीं रहूंगी. आई विल नॉट स्टे अलोन एट होम. तो दोस्तों आप इसको चाहे कई तरह से बना सकते हैं. देखिए दोस्तों, अगर आप गाने का सेंस समझ रहे हैं, उसका मतलब जान रहे हैं, तो आप कई तरह से आंसर भी आप बना सकते हैं. तो आंसर आपका एक बार और सुन लीजिए कि यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ प्रिटेंस बट आई विल नॉट स्टे एट होम विदाउट यू. आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रही हूँ. दोस्तों ये मेरे पतिदेव हैं जो सामने खड़े हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ, जरा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग टू यू? Yes, I know your response. You know only Bhojpuri. You don't know Hindi. You don't know English. I know it very well. So listen in Bhojpuri. ठीक है, सुन लीजिए, भोजपुरी में ही सुन लीजिए. देखिए, रउआ कौनो बहाना कर ली, ठीक बा, लेकिन ए बेरी हम रउआ के अकेले नौकरी पर जाए ना दे. देखिए 3 गो विकल्प बा. या तो हमारा के मायके हमारा छोड़ दे, या तो रउआ यही जा परमानेंट रही हमारी संगे, आ नहीं अपना संग हमहू के नौकरी पर लेकर चली. जान बुझा गई. और कोनो जौन बात चौथा विकल्प बा नहीं, हम ये घर में अब रउआ बिना रह ना पाए. अकेले तो ना रहो, अकेले रह हमारा बहुत मुश्किल बा. और घर के परिवार के लोग ऐसा बा कि हमारा के जाओ अकेले रही ना. ठीक बा, अब बुझा गई ना. सुनिए आगे के लाइन, सुनी का बा. रउरा तो चल जाता नहीं बहरा, आ रउरा घर में जे रउरा से छोट बाबू हो आ जे रउरा से बड़ बाबू हो, सब एके लौरी हाँकता. रउरा तो चल जाता नहीं बहरा मीन्स यू आर गोइंग आउटसाइड, मीन्स यू आर गोइंग टू जॉब. आ रउआ घर में एंड इन योर हाउस जे रउआ से बड़ बाबू हो मीन्स द मेंबर्स हु आर एल्डर टू यू, आ जे छोट बाबू हो एंड द मेंबर्स हु आर यंगर टू यू.
सब एके लौरी हाँकता मीन्स ऑल पर्सन्स बिहेव विथ मी इक्वली। रउआ तो चल जाता नहीं बहरा और रउआ घर में जे रउआ से छोट बाबू हो आज रउआ से बड़ बाबू हो सब एके लौरी हाँकता मीन्स यू आर गोइंग टू जॉब and the members of your family who are younger to you and who are elder to you, they all behave equally with me. Now friend, the rule is रउआ तो चल जाता नहीं बहरा, रउआ रउआ मीन्स आप यू, तो चल जाता नहीं बहरा, तो चल जाता नहीं बहरा मीन्स आप तो बाहर चले जा रहे हैं, मीन्स यू आर गोइंग टू जॉब। बाहर का मतलब आउटसाइड भी ले सकते हैं, जॉब ज़्यादा सही है। यू आर गोइंग टू जॉब। आ रउआ घर में आ मीन्स और एंड आ रउआ घर में एंड इन योर हाउस जे रउआ से छोट बाबू हो, जे मीन्स जो यानी हु मीन्स की द मेंबर्स हु छोट बाबू हो, छोट यानी यंगर नॉट स्मॉल। हियर फॉर द वर्ड छोटा वी हैव टू यूज यंगर नॉट स्मॉल। जे छोट बाबू हो मीन्स द मेंबर्स हु आर यंगर टू यू। आ जे बड़ बाबू हो आ मीन्स एंड, जे मीन्स जो, बड़ बा मीन्स एल्डर, उहो मीन्स दैट आल्सो मीन्स द मेंबर्स हु आर एल्डर टू यू। सब एके लौरी हाँकता, सब मीन्स ऑल पर्सन्स, एके लौरी मीन्स एक जैसे, हाँकता मीन्स व्यवहार करते हैं, बिहेव विथ मी। फ्रेंड द लाइन इज रउआ तो चल जाता नहीं बहरा आ रउआ घर में जे रउआ से छोट बाबू हो आ जे बड़ बाबू हो सब एके लौरी हाँकता मीन्स यू आर गोइंग टू जॉब एंड द मेंबर्स इन योर फैमिली हु आर यंगर टू यू एंड हु आर एल्डर टू यू दे ऑल बिहेव इक्वली विथ मी। You understand what am I saying to you? You don't understand. Friend, in this line you are watching, रउआ तो चल जाता नहीं बहरा मीन्स आप बाहर चले जा रहे हैं। फ्रेंड व्हाट इज दिस? इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप वाक्य लाइन को महसूस करिए और देखिए कि इसकी एंडिंग कैसे हो रही है और फिर जैसी एंडिंग हो वैसे आप नियम लगाइए। रउआ तो चल जाता नहीं बहरा मीन्स रउआ यानी आप तो बाहर चले जा रहे हैं यानी आप बाहर जा रहे हैं। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका रूल बहुत आसान है। इज एम आर के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ही सी इट है तो इस के साथ हम आईएनजी लेते हैं। अगर आई है तो एम के साथ आईएनजी लेते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या यू है वी है दे है तो हम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो रउआ चल जाता नहीं बहरा, यू आर गोइंग आउटसाइड। आज ये रउआ घर में रउआ से छोट बाबू हो मीन्स आपके परिवार में जो सदस्य आपसे छोटे हैं। फ्रेंड दिस इज यूज ऑफ दिस इज सिंपल यूज। हियर वी यूज इज एम आर बट नो फॉर्मा वर्ब वी हैव टू यूज। द मेंबर्स हु आर यंगर टू यू, आज ये रउआ से बड़ बाबू हो यानी जो आपसे बड़े हैं वो भी, इट इज ऑल्सो सिंपल यूज। द मेंबर्स हु आर एल्डर टू यू, सब एक और यहाँ पता यानी सब एक जैसे व्यवहार करते हैं। ताहती है प्रेजेंट इंडिफरेंट। दोस्तों जिस लाइन का अंत ताहती है सब वो प्रेजेंट इंडिफरेंट होता है और इसके नियम बहुत आसान है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें एस आई एस लेना पड़ता है वर्ब में। अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। नेगेटिव हो प्रेजेंट इंडिफरेंट में तो फिर सिंगुलर के साथ हमें डज नॉट लेना पड़ता है और प्लूरल के साथ डू नॉट लेना पड़ता है। सब एक और यहाँ पता नहीं सभी एक जैसे व्यवहार करते नहीं। एवरीबॉडी मीन्स ऑल पर्सन्स बिहेव इक्वली टू मी। यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग टू यू? आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कर रही हूँ? यू डोंट अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड ओनली भोजपुरी, सो लिसन इन भोजपुरी। ऐसा बा रुआ तो बाहर चल जाता नहीं हाँ और रुआ घर में जो रुआ से छोट बाबू हुआ जो बड़ बाबू हो सब एक जैसे हमारा से व्यवहार करता। का छोट का बड़ सब हमारा से रे की भाषा में बतियावेला। कोनो इज्जत नहीं कि हमारी भाभी है और एगो छोट बहन भी है और एगो आपके छोट भाइयों बा। हाँ इहो हमारा से उम्र में कम बा लेकिन हमारा से इ लोग रे की भाषा में बात करेला। आज ये बड़ बा ओके तो बतिया अलग बा उ तो हमारा से तुम तड़ाम भाषा में ही खाली बतियावेला। तो अब हम ये घर में ना रहब, हमरा के देखी नैहरे छोड़ दी ना तो अपने संगे नौकरी पर लेके चली। हम अभी घर में ना रह पाए। भाई देखिए आगे का हमरा के लोग कहता, आगे के लाइन में सुनी। छोटा
छोटकी ननदिया बोले रही रही के बानी। छोटकी ननदिया बोले रह रह के बानी। छोटकी ननदिया बोले रह रह के बानी मीन्स माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ स्पीक्स दिस आर दैट टाइम टू मी। छोटकी ननदिया बोले रह रह के बानी मीन्स फ्रेंड्स योर यंगेस्ट सिस्टर मीन्स माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ स्पीक्स समथिंग दिस आर दैट टू मी टाइम टू टाइम। छोटकी ननदिया बोले रह रह के बानी मीन्स माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ। ननदिया मीन्स ननद। वह औरत अपने पति से कह रही है कि मेरी जो सबसे छोटी ननद है यानी आपकी जो सबसे छोटी बहन है। तो दोस्तों ननद वर्ड के लिए सिस्टर इन लॉ लेना पड़ता है और सबसे छोटी का मतलब यहाँ स्मॉलेस्ट से नहीं, यहाँ हमें यंगेस्ट या यंगर कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं। सबसे छोटी है तो यंगेस्ट लेंगे। तो छोटकी ननदिया बोले रह रह के बानी यानी मेरी जो सबसे छोटी ननद है रह रह के बानी। रह रह के मीन्स समय समय पर, बानी यानी वाणी यानी बोली, यानी जो मेरी सबसे छोटी ननद है वो मुझे समय समय पर कुछ न कुछ सुनाती रहती है, कुछ न कुछ अंट संट बकती रहती है, कुछ न कुछ ऐसा बोलती है जो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो मेरी सबसे छोटी ननद कुछ न कुछ मुझे सुनाती रहती है यानी सुनाती है, ताहती है। दोस्तों ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों लाइन हो गई कि मेरी सबसे छोटी ननद मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है यानी सुनाती है। माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ स्पीक्स यानी बोलती है, सुनाती है का मतलब बोलती है, स्पीक्स समथिंग कुछ न कुछ, दिस आर दैट इधर उधर की बात, ऐसी वैसी बात, टाइम टू टाइम समय समय पर, टू मी यानी मुझे। तो दोस्तों ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रूल्स अगर क्लियर हैं 3 टेंस के तो आप बहुत सी लाइनों को बिना दिक्कत के बना सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग टू यू। आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कर रही हूँ? आपको नहीं समझ में आ रहा है, सुन लीजिए, भोजपुरी में सुन लीजिए। क्या वो मुझसे कहती है ऐसा, आपके जो सबसे छोट बहन बिया इतनी बात धैले बिया परकट्टी, उ जब ना तब कुछ न कुछ हमरा के बकत रहेले, बोलत रहेले। एक ठे गुड्डा गुड़िया धैले बिया, हम आंगना में बर्तन माजे नहीं तो दुआरी पर बैठ जाई और गुड्डा गुड़िया से बतियाई, कही ए गुड़िया तारा नसीब में नैहर जाके लिखल नहीं थे, तू नैहर ना जेबू, तार करम फूटल बा। उरा और बहिन गुड्डा गुड़िया से बतियावेले या सुनावेले हमरा के, बताए कैसे हमें घर में रही। हाँ ऐसा तो रउरा घर के सदस्य हो गए बा लोग, ऐसे न कौन परिवार होला। ये परिवार में हम रह पाए, हम ना रह, लेके चली हमरा के अपनी संग नौकरी पर, न तो छोड़ दिया हमरा के नैहर है। और बहन बाप रे बाप, ओकर बियाह जहाँ होई उ जाते अलगा बिलगी कराई, ओके वैसन उ रहन बार होगा लोगों के बिगाड़ के धैले बानी। उ जाले तिवारी जी के खेत में मुरई उखाड़ के लिया ले खा ली। एक दिन तिवारी जी पकड़ लेनी, हाँ लगलस रोए। हाँ हम गईली तो तिवारी से निहोरा पाती कहनी कि तिवारी जी छोड़ दी, जाए दी ना जाइए अबरौरी खेत में मुरई ना उखाड़ी होगा। तो ऐसा रहन बिगड़ल बा, रुआ लोग के हम का बताई, रुआ लोग के मन बिगाड़ के धैले बानी। ओकर बियाह होई जौनी घरे जाई जाते उ अलगा बिलगी कराई होगा। तो ऐसा रहन बा, हमरा के का सुनावेले रुआ के बुझाता। हाँ है सुनी आगे अपने परिवार के लिए। वही के पछिनिया बोलावेली जेठानी। कह के बझिनिया बुलावेली जेठानी मीन्स कह के बझिनिया बुलावेली जेठानी मीन्स माई एल्डर सिस्टर इन लॉ टेल्स मी अ चाइल्डलेस वोमन। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ टेल्स मी अ चाइल्डलेस वोमन। बझिनिया मीन्स चाइल्डलेस वोमन। फ्रेंड्स द रूल इज कह के बझिनिया बोलावेली जेठानी मीन्स मेरी जेठानी। जेठानी के लिए दोस्तों एल्डर सिस्टर इन लॉ लिया जाएगा। दोस्तों सिस्टर इन लॉ वर्ड जो है हम लोग जो है हिंदी के कई शब्दों के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। साली वर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है, ननद के लिए भी होता है।
भौजाई के लिए भी आपका जो होता है, जेठानी के लिए भी होता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड जो है हिंदी में कॉमन होते हैं, वो कई जगह पे इस्तेमाल होते हैं सेंस के हिसाब से, थोड़ा बहुत परिवर्तन के हिसाब से परिवर्तन करके। तो दोस्तों लाइन है, कही के बझिनिया बोलावेली जेठानी, मीन्स मेरी जो जेठान है, जेठान यानी कि मेरे पति के बड़े भाई की बीवी, वो मुझे बाझिन कहती हैं, बाँझ कहती हैं। बाँझ यानी कि ऐसी औरत जिसको कोई संतान नहीं होती है, जिसको कोई औलाद नहीं होती है, उसको बाँझ कहा जाता है, और वो हमको सीधे बाझिन कहती हैं। तो दोस्तों लाइन है कि मेरी जेठान मुझको बाझिन कहती है, ताहती है। दोस्तों हम देख रहे हैं इस गाने में बहुत सी लाइनें जो प्रेजेंट इंडिफरेंट से संबंधित है, सिंपल प्रेजेंट, इसके रूल बहुत आसान होते हैं, जो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया है। तो दोस्तों लाइन हो गई, माई एल्डर सिस्टर इन लॉ टेल्स मी अ चाइल्डलेस वोमन, बताती है, कहती है चाइल्डलेस वोमन यानी बाझिन। यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग टू यू, आपको समझ में आ रहा मैं आपसे क्या कर रही हूँ? यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू नो ओनली भोजपुरी, यू लिसन इन भोजपुरी। और भौजाई बाड़ी, अरे हमार जेठान रुआ पूजा तक का कह रही, हमारा के बाझिन कह रही, सीधे कह रही है बझिनिया, बर्तन मांज, ए बझिनिया कपड़ा धो, हाँ हम बाझिन है जी, रोरा घर में आके हमारा के एक किताब मिल रहा बाझिन पे, हाँ काहे बाझिन हुआ हमारा कहले, हाँ का बिगड़ ले बानी उनके, हम का बिगड़ ले बानी, बड़ घर के हई, ढेर बड़ घर के हुए हई, हाँ बोल दी हम और अपनी भाभी से और भैया से ना, तो उनके पाही लगा के धो दी हैं लोग, वो का बुझत अड़ी अपना के बाझिन कह रही हमारा के, हाँ ये उनके रह ना, हम पढ़ल लिखल मेहरारू हैं, ये सुने रोरा घर में हम आई बनी, हाँ ये देवीचक गांव से हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं, फाजिलनगर से इंटर कैले हैं, गड़ैया से बीए कैले हैं, आ कुशीनगर महाविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हम बीएड कैले बानी, और घर में आके हमारा के बाझिन कहल जाता, ये रहन बा रोरा घर के। अरे कोई नहीं अपनी भाभी से भाई से तब पाही लगा के धरिए लोग, का बुझे तड़ी अपना बझनिया कहले बाड़ी ना हमरा के, या रोज कहली, अब अति प्राण हो गई बा, हम एजा रहब नाही, लेके चली हमरा के अपनी संगे, न तो नौकरी पर लेके चली, ना तो छोड़ दी हमरा के, हमारे नैहर हम एजा और घर में ना रह, बुझा गए फ्रेंड्स। टुडेज लाइन, कौनो बहनवा करबा रहब नहीं घरवाई बलम जी, हमरा के पेठाई द नहीं हरवाई बलम जी, मीन्स ओ माई हस्बैंड, you can make any pretense, but now I will not stay alone in this home without you, so you either take me with you to the job or you drop me, send me to my paternal home। रउआ तो चल तनी बाहरा, रउआ घर में जे रउआ से छोट बा हो, जे रउआ से बड़ बा हो, सब एके लौरी यहाँ कथा, मीन्स यू आर गोइंग टू जॉब and the members in your family who are younger to you and who are elder to you, they all behave equally with me, they don't respect me। छुटकी ननदिया बोले रही रही के बानी, मीन्स माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ, मीन्स योर यंगेस्ट सिस्टर स्पीक्स समथिंग दिस आर दैट टाइम टू टाइम टू मी, कह के बझिनिया बोलावेली जेठानी, मीन्स माई elder sister-in-law tells me a childless woman। Friends, in the last video, lines of this song is also available in a written form. You please see the video till last. Thanks to give time. Friends, with help of these notes, you can prepare this song very well. And friend, if you know the method how to translate the song, then friend you can translate any type of sentence, any type of story you can translate. And friend, if you like the video, then please like and share it, and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.